Seven accounts I told you to draw income. Have you drawn it? Or 10 accounts you had drawn in the class itself, right? 10 accounts अपने class में draw कर लिए थे. जा पीछे 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 लास्ट हाँ बैग्स नीचे અહીંયા આવી જા बैग नीचे ऐसा आ साइड આવી જા बैग नीचे Ten accounts you have already drawn, right? All of you have drawn 10 accounts at the end of last class. So all videos on. Can you just tell me the names of accounts? I think it is cash account. Yeah. It is cash account then. क्या बोल cash account, bank account, then you got I think building account, right? एक काम कर અહીંયા ઘૂસી જા બેગ નીચે મૂકી દે मतलब હાથમાં લઈને આ સાઈડ આવી જા સંભાળે last second last ચશ્મા નથી અહીંયા આવી જા
चश्मा नहीं भूली गई छूटी गया चश्मा कोई के इतना भूले बधाने दूर ना जो है કેટલું છે માઈનસ 0 પોઈન્ટ બસ આ તો થોડું યોગા કરીશ તો વયા જશે Sorry. Wait. Chalo. Videos on. We started with ledger, right? Tell me what is ledger basically. Ledger का मतलब book of secondary entry. Book of secondary entry. Primary book of account is called journal. How many books of accounts are there? 2 books. Journal and ledger. 2 book of account होते हैं आपके journal and ledger. बराबर है? Primary book, first book of entry is called journal. Secondary book of entry is called ledger. सबसे पहला record of any transaction is done in journal. And from there you copy down or you post. You copy or you post the transactions into ledger, right? And every transaction that is entered in journal has to be posted in ledger in respective account. Every transaction which is there in journal वो सब के सब ledger में होते होते और होते ही है. तो फर्क क्या है? Basic difference between journal and ledger. Journal में क्या होता है? Transactions are recorded date wise, whereas in ledger they are recorded date wise तो होता ही है plus account wise. और account का format क्या होता है? आपको आता है ये बनाने को? Bit partition लेना है. There are 2 sides of every account, left hand side and right hand side. What is left hand side called? Debit side. What is right hand side is called? Credit side. Left hand side is debit side, right hand side is credit side, right? And format is same. Date, particular JF amount, date, particular JF amount. Is this clear? Left hand side पे भी same है, right hand side पे भी same है. कुछ अलग नहीं है. Debit side and credit side, left hand side and right hand side. Is this clear? Comfortable? Now, next part about ledger, you have to go date wise plus you have to go account wise. What is the main importance of ledger? Is it in the posting part or it is in the analysis part? Analysis part. While analyzing, this becomes very important. That's why it is called as, एक और नाम दिया था इसका, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट. आपको एनालाइज करना है ना, कुछ भी समझना है अकाउंट्स को, जर्नल से भी समझ सकते हो, लेकिन वो इंडिविजुअल एंट्री बेसिस होता है. आपको हर एक एंट्री को देखना पड़ेगा. लेजर आप एक अकाउंट को देख के उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, उस अकाउंट में क्या चल रहा है. तो इससे आपको बिजनेस की आइडिया मिल जाती है, बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, कैश में क्या हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है, बिल्डिंग में क्या हो रहा है, कैपिटल, परचेज, सेल्स, राम, डिस्काउंट, सब अकाउंट को हम लोग देखेंगे एक एक करके, एनालाइज करके. तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा बिजनेस अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ब्रॉड आइडिया आ जाती है. एनालिसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रही है बात? तो लेजर, इसको बोलते हैं रीडिंग ऑफ लेजर, जो मैं बता रहा हूँ ना एनालिसिस पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज रीडिंग ऑफ लेजर. अर्लियर दिस वाज अ सेपरेट टॉपिक टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू रीड अ लेजर. सैडली दे हैव रिमूव्ड दैट. बोलते बच्चे बहुत छोटे हैं, समझने के लिए बहुत छोटे हैं, अभी नहीं समझा, बड़े होके समझ जाए. तो अभी से समझने का ट्राई करो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू. अभी आपको कोई पूछेगा नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या, आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है. मैकेनिकल है, ट्रांजैक्शन देखा, 2 बाय किया, खत्म हो गया, बैलेंस किया, खत्म हो गया. बट अपना दिमाग चालू रखो, दिमाग यूज करते जाओ, तो आगे जाके आपको इजी पड़ेगा. इज दिस क्लियर? सो लेजर करते हैं, सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री, सेकेंड बुक ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो पहला सम हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर इन द बुक्स, राइट? फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट सम कर लिया था. जर्नल बना के दे दी थी आपको और हमने सीधा पोस्टिंग किया. ये सम में भी आपको जर्नल बना के दे दिया, आपको पोस्टिंग करनी है. ठीक है,
आई थिंक ये अकाउंट्स की बुक्स है ना किसी किसी के, आपकी नहीं, ये इंग्लिश तो डेस्क में डालना है, आधा आधा करके दो पार्ट करके डाल। चलो अब मुझे बताओ सेकेंड सम और फर्स्ट सम में फर्क क्या है? कंबाइंड एंट्री, बेसिकली कंपाउंड एंट्रीज दी गई है ना सेकंड सम में। फर्स्ट सम में क्या थी? सिंपल एंट्रीज थी। सेकंड सम में कंबाइंड एंट्रीज है। कंबाइंड एंट्रीज को पोस्ट करना है, ठीक है। पहले तो हम लोग मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है इसका, फिर हम लोग पोस्टिंग करते हैं। कैश बैंक बिल्डिंग टू कैपिटल, इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री? कैश बैंक बिल्डिंग टू कैपिटल, कैश बैंक बिल्डिंग इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल, बराबर से ऑल ऑफ यू। परचेज टू कैश टू बैंक टू डिस्काउंट टू राम, purchase goods partly on cash, partly by check, partly on credit, and there is CD, both on cash और check part पे होगा। राम कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स मतलब goods sold partly on cash, partly by check, and discount partly on credit, and discount allowed. Okay, to Ram on the payment, immediate payment. Drawings to cash to bank, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। Drawings to cash 1200 to bank 800, मतलब क्या? Exactly, cash is removed from bank as well as business for personal। ओनर लेके जा रहा है घर पे, बराबर है। ड्रॉइंग्स पूरा का पूरा बिजनेस से लेके जा रहा है कैश नहीं, थोड़ा बिजनेस से थोड़ा बैंक से। बैंक से कितना लेके जा रहा है? 800। बिजनेस से कितना लेके जा रहा है? 1200। इज दिस क्लियर? तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा घर पे लेके जा रहा है। ओनर इज टेकिंग अवे कैश फ्रॉम बैंक एज वेल एज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कैश बैंक राम टू बिल्डिंग, क्या होगा? कैश बैंक राम टू बिल्डिंग, बिल्डिंग इज सोल्ड। ये समझ में आया आपको? बिल्डिंग क्रेडिट हो रहा है मतलब बिल्डिंग इज सोल्ड। हेलो, टू राम पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट एंड पार्टली बाय चेक। तो कैश बैंक राम टू बिल्डिंग, कैश बैंक राम टू बिल्डिंग। घर वालों को समझ आया इंटरप्रिटेशन? अभी जाते हैं पोस्टिंग पे। कभी भी आपको कंबाइंड एंट्री को पोस्ट करना है ना, थिंकिंग, कभी भी कंबाइंड एंट्री को पोस्ट करना है, फाइन, कभी भी कंबाइंड एंट्री को पोस्ट करना है तो डायरेक्टली जंप मत मार देना कंबाइंड एंट्री पे। यू हैव टू फर्स्ट डू सिंपल एंट्री, स्प्लिट द एंट्री। ऑलवेज व्हाइल डूइंग लेजर स्प्लिट द एंट्री एंड देन पोस्ट। क्या करने का? स्प्लिट मतलब इंडिविजुअल एंट्री में कन्वर्ट करना, सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करने का और फिर पोस्टिंग करने का। डायरेक्टली कभी भी कंबाइन में घुस मत जाना पोस्ट करने के लिए, मल्टीपल डेबिट क्रेडिट्स भी आएंगे आगे, ठीक है। always split the entry, always split it into individual entry, simple entry and then post। आपको डायरेक्टली स्प्लिट करना मन में जम रहा है तो मन में कर लो स्प्लिट, या तो आप लिख के कर लो स्प्लिट, लेकिन स्प्लिट तो करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अलग अलग इंडिविजुअल सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करना है और फिर पोस्ट करना है, ठीक है। देखो अभी पहला वाला मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। फर्स्ट एंट्री क्या दिख रही है आपको? कैश बैंक बिल्डिंग टू कैपिटल। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? तो इसकी स्प्लिट एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल एंड बिल्डिंग टू कैपिटल। हाउ मच इज कैश टू कैपिटल? 8,000, राइट? 4,000 in bank to capital and 3,000 is building to capital, right? In journal we used to combine that. Ledger we will split it. अलग अलग करके आराम से 3 एंट्री करके फिर पोस्टिंग करना। अभी इंडिविजुअली आराम से कर सकते हो। नॉर्मल पोस्टिंग कैसे करनी है? कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। तो हाउ विल यू डू दैट? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट में क्या लिखना है? टू कैपिटल अकाउंट कितना? 8,000 एंड डेट इज आई थिंक 1/1/10, बराबर। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट में टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश। याद आ रहा है कल किया था ये? एक डेबिट और एक
क्रेडिट, अमाउंट भी सेम और डेट भी सेम। बात समझ आई? दूसरा क्या था? बैंक टू कैपिटल 4000। So how will you do this? Bank to capital 4000. Go to bank account. Go to bank account. Bank account डेबिट हो रहा है। हेलो, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ऑफ बैंक व्हाट विल राइट? टू कैपिटल अकाउंट। बैंक में डेबिट साइड पे राइट टू कैपिटल अकाउंट 4000। ओके, एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल व्हाट? बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट 4000। बाय बैंक अकाउंट 4000। ओके, देन बैंक में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय बैंक। इज दैट क्लियर? थर्ड वन, यू गॉट बिल्डिंग टू कैपिटल। बिल्डिंग टू कैपिटल बताओ मुझे, बिल्डिंग टू, बिल्डिंग क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बिल्डिंग डेबिट हो रहा है, तो बिल्डिंग का डेबिट साइड, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। और इफ यू गेटिंग दैट, पहले डेबिट फिर, पहले डेबिट फिर, एंट्री में भी पहले डेबिट फिर, पोस्टिंग में भी पहले डेबिट फिर, उल्टा नहीं कर देना। डीसी, डीसी मार्वल और डीसी मालूम है ना? डीसी करने का, पहले क्या करने का? डेबिट फिर क्रेडिट। सो बिल्डिंग में क्या लिखोगे? टू कैपिटल। टू कैपिटल कितना? 3000 बराबर है। और कैपिटल में क्या आएगा? बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग। कभी कैपिटल में बाय कैपिटल आ सकता है? बिल्डिंग में टू बिल्डिंग आ सकता है? कभी नहीं। जो अकाउंट का नाम है ना, वो उसके अंदर कभी नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये रीजंस है। ये सिर्फ रीजंस है कि ये भैया क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये सामने वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ। ये कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये सब डेबिट हुआ। दीज आर ऑल रीजंस। तो सेम अकाउंट कैन नॉट अपीयर इनसाइड द अदर अकाउंट। कैपिटल के अंदर कभी कैपिटल दिखने वाला है कि नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्डिंग के अंदर कभी बिल्डिंग दिखेगा? टू बिल्डिंग बाय बिल्डिंग, नॉट पॉसिबल। बैंक में टू बैंक बाय बैंक, नॉट पॉसिबल। इज दिस क्लियर? इज ऑलवेज गोइंग टू बी द अदर अकाउंट, ऑलवेज। गुड। और asking something. All of you comfortable with the first entry? All of you. बोलो, any doubt? Sorted? तीनों का स्प्लिट किया फिर पोस्ट किया, ठीक है। ये स्प्लिट एंट्री आप रफ में लिख के भी कर सकते हो, या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको नैक आ जाएगा, आप ओरली भी स्प्लिट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे, ठीक है। करें आगे? चलो नेक्स्ट वाला देखो। अभी आप मुझे बताओ इसकी स्प्लिट एंट्री क्या होगी? परचेज टू कैश टू बैंक टू डिस्काउंट टू राम। परचेज टू कैश, परचेज टू बैंक, purchase to discount, and purchase to Ram. How much is purchase to cash? 1500. How much is purchase to bank? 1000. How much is purchase to Ram? Purchase to cash is 1000. Purchase to bank is 140. Sorry. Purchase to cash is 1000. Okay. Purchase to bank is 1400. Purchase to discount is 400. Purchase to discount is 400. Sorry, yeah. And purchase to RAM is 1200. Or if you got this, ये रफ में ही लिखना है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी खाली स्प्लिट करना है, अमाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो साथ में करते जाओ। कैसे करोगे? परचेज टू कैश 1000. हाउ विल यू पोस्ट इट? हाउ विल यू पोस्ट परचेज टू कैश? परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट क्या है? ये रहा। परचेज अकाउंट में विच साइड? डेबिट साइड टू कैश, टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 1000. ओके। अब देखो यहां पर लालच आ जाती है, गड़बड़ कर बैठते हो आप क्या करोगे? टू कैश, टू बैंक, टू राम, टू डिस्काउंट, इधर ही सब भर दोगे। नहीं करना ऐसे, कतई नहीं करना। स्प्लिट करने का रीजन बताया मैंने। सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करो, एक एक एंट्री करो, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर डेबिट फिर डेबिट फिर डेबिट बोला मैंने, पहले डेबिट फिर
किया होगा, मेरे को मालूम है, कर लिया, होता ही है, अंदर से आती है फीलिंग, टू इधर ही तो है, बाजू में लिख लो। बिल्कुल मत करना, गड़बड़ करोगे आगे जाके, बता रहा हूँ अभी से। पहले डेबिट फिर क्रेडिट, सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करो, डेबिट करो क्रेडिट करो, वापस डेबिट करो वापस क्रेडिट, वापस डेबिट वापस क्रेडिट, इंडिविजुअली करना है। सुना, ब्रेन को ऐसा थोड़ा वायर करो कि पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, एक एक एंट्री, वन एंट्री एट ए टाइम। दूसरा एंट्री पे जंप मत करो, अभी इजी लग रहा है, एक सिली मिस्टेक हो गया ना, एक वो अकाउंट रॉन्ग, उसका बैलेंस रॉन्ग, 2-3 मार्क किधर उड़ जाएंगे मालूम भी नहीं पड़े। दैट्स ऑल। ओके, है इजी, लेकिन फूक फूक के करने का। ओके, कुछ और नहीं फूकने का, ये इधर। ओके, नाउ परचेज टू कैश, परचेज में टू कैश, कैश में क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट, परचेज में टू कैश, कैश में लिखोगे बाय परचेज अकाउंट 1000, डेट क्या थी अपनी, आई थिंक 5 बराबर है। परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज। ओके, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मैंने राइट ही किया है, सर वही बोल रहे हैं, पहले टू लिखो के बाद में बाय लिखो, अभी हो जाएगा राइट, बाद में कब सिली मिस्टेक हो जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा, प्लीज। ओके, बी अवेयर फ्रॉम द बिगिनिंग। परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज, टेक बेबी स्टेप्स, ये हो गया खत्म। अभी परचेज टू बैंक, आराम से जाओ, वापस जाओ परचेज पे, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, कितना 1400, परचेज में टू बैंक, और बैंक में क्या लिखोगे आप, बाय परचेज, बैंक का ये रहा बैंक, बैंक में क्रेडिट साइड पे लिखना है आपको बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 1400। ओके, दिस इज ऑन 5-1-10। व्हाट नेक्स्ट, परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400, परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है वापस बोलो, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो परचेज में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 400, और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 400, बाय परचेज अकाउंट 400। इज दिस क्लियर? Then you got purchase to Ram, purchase to Ram. So purchase में again go to purchase account debit side. What will you write? To Ram account. Purchase account में debit side to Ram account how much? 1200. Okay, 1200. और राम में क्या लिखोगे? राम में क्या लिखोगे? तो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। Okay, purchase में टू राम, राम में बाय परचेज 1200. Is that clear? Got that? All of you? 4 split entries. चलो ट्राई करो नेक्स्ट का, आराम से जाना। पहले मुझे बताओ स्प्लिट एंट्री क्या लिखोगे नेक्स्ट थर्ड वाले की आप? राम टू सेल्स हाउ मच? 1500, कैश टू सेल्स 1500, बैंक टू सेल्स 1900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स 100 रुपीज। इज दैट क्लियर? आराम से एक एक पोस्ट करने का, 1-1 करो, सब लोग करो, ट्राई करो, एक एक करके, सिंगल सिंगल पोस्टिंग, सिंगल सिंगल, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, सोम को आ रहा है, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। घर वाले समझ गए यहाँ पे? घर वालों को एनी डाउट? ट्राई करो थर्ड वाला, स्प्लिट इट एंड ट्राई इट, स्प्लिट इट एंड ट्राई इट। Split and try, split and try.
पहला आएगा राम टू सेल्स. So Ram account debit side to sales. Ram account debit side to sales account. That should be 1500. Ram account debit side to sales 1500. It is 10110. And sales account credit side by Ram. By Ram account 1500. 10110. Sales Ram में 2 sales, sales में by Ram. Then cash to sales 1500. So go to cash account, debit side to sales account. Cash account debit हो रहा है, उसके debit में 2 sales 1500. And cash में 2 sales, तो sales में buy cash. Sales में buy cash 1500. Okay. Then bank to sales 1900. So bank account debit side you go. Bank account debit side will write to sales. Bank account debit side will write to sales 1900. Bank account debit side will write to sales. And sales account में credit side will write by bank. Sales account में credit side will write by bank 1900. 1900. Then what next you got is discount allowed to sales. Discount allowed में on the debit side you'll write to sales. Discount allowed में on the debit side you'll write to sales. That is 100. Or sales account में on the credit side will write by discount allowed. By discount allowed. By discount allowed. ठीक है, हो गया, जम रहा है सबको? Anyone any problem posting the entries घर वाले? Okay. Next वाला drawings to cash to bank. Drawings to cash to bank. How will you split it? Drawings to cash, drawings to bank. So go to drawings account. पहले drawings to cash. Drawings में क्या लिखोगे? Drawings to cash. To cash. Drawings हो रहा है debit. On the debit side of drawings account, you'll write to cash. Drawings में to cash 1200. Drawings में to cash 1200 और cash में क्या लिखोगे? By drawings. Cash में लिखोगे by drawings 1200. Okay, this is happening on 15. दोनों जगह 15 का डेट होना चाहिए, बराबर है? 15 बराबर है? 15 का डेट होना चाहिए. Then next is वही drawings to bank. So drawings में what you'll write? To bank. Drawings में you'll write to bank account. Drawings में you'll write to bank account, that is 800. And बैंक में on the credit side, बैंक account ये रहा, on the credit side क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि बैंक ड्रॉइंग्स डेबिट हुआ. बैंक में क्रेडिट साइड क्या लिखना है? बाय ड्रॉइंग्स. बाय ड्रॉइंग्स कितना? 800. डेट 15/1/10. 15/1/10. Is that clear? बराबर है? Fine. Then last one, cash bank Ram to building. Split it. What are the split entries? Cash to building 1000, bank to building 1800, and Ram to building 200. How will you post it? पहला cash to building. Cash में क्या? To building. Cash में to building
1000. और बिल्डिंग में बाय कैश, बिल्डिंग में बाय कैश 1000. कैश में 2 बिल्डिंग में बाय कैश 1000. Date is I think 17. All of you getting that? Okay. Then first entry done. Bank to building, that is 1800. How will you do it? बैंक में 2 बिल्डिंग, बैंक में 2 बिल्डिंग 1800. एंड बिल्डिंग में क्या लिखना है? बाय बैंक. बिल्डिंग में लिखना है बाय बैंक 1800. बिल्डिंग में लिखना है बाय बैंक 1800. दिस इज ऑन 70. एक एक करना है, सिंगल सिंगल एंट्री करके करना है. ठीक है, थोड़ा भी घाई नहीं करना है. घाई किया बैंड बजा. ओके, अकाउंट में थोड़ा भी घाई नहीं करने का. देन राम टू बिल्डिंग, राम टू बिल्डिंग. ये रहा राम. राम में ऑन द डेबिट साइड व्हाट विल यू राइट? 2 बिल्डिंग. राम में 2 बिल्डिंग कितना है? 200. और बिल्डिंग में बाय राम, बिल्डिंग में बाय राम, दैट इज 200. दिस इज हैपनिंग ऑन 17. घर वाले समझ रहे हैं? ये यहाँ पे आपकी पूरी पोस्टिंग हुई खत्म. पोस्टिंग हुई खत्म. पोस्टिंग हुई खत्म. अभी करना है बैलेंसिंग. यहां तक कर लो पहले सब लोग. चेक कर लो हर एक अकाउंट में परफेक्ट अमाउंट, अकाउंट नाम परफेक्ट होना चाहिए. कभी कभी हड़बड़ाहट में क्या हो जाता है, इधर बिल्डिंग में बाय बिल्डिंग लिख देते हो, बैंक में बाय बैंक लिख देते हो. करोगे ही, घाई करोगे. उतावड़ नहीं करवानी. उतावड़े आंबा न पाके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मालूम है कि नहीं? हाँ, कैरी को आम बनने टाइम लगता है ना, 2-3 महीना. फटाफट फटाफट गरम करो, कच्चा करो, कुछ भी करो, गरम हो जाएगा 2 दिन में. इज इट पॉसिबल? पक्का हो जाएगा? वो नहीं हो जाएगा. तो स्लो एंड स्टेडी. स्पीड अपने आप आ जाएगी. स्पीड का टेंशन मत लो. मोर यू प्रैक्टिस ना, अपने आप स्पीड बढ़ेगा. ओके, डोंट वरी अबाउट स्पीड. सी टू इट, यू डू इट परफेक्टली. एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. डेट में गड़बड़ हो सकती है, अमाउंट में गड़बड़ हो सकती है, लिखने में गड़बड़ हो सकती है. हर एक चीज को ध्यान से करने का. अपने आप बाद में एक बार सेट हो गया दिमाग, फिर स्पीड आ जाएगी. घाई नहीं करना. हो गया सबका? चलो. Now, what is the next step? Once you have done the posting, you do what? Balancing. आजू हाथ तो कर ही लेता. Wait, listen now. क्या देखे, क्या क्या कर रहा है? तो listen. How to do the balancing? Balancing कैसे किया जाता है? पहले कैश अकाउंट पे आओ. देखो, इसको इंटरप्रेट करते हैं. आप एक अकाउंटेंट हो, आपके सामने किसी ने कैश अकाउंट रख दिया. आप कैसे सोचोगे? कैश क्या है? एसेट है, राइट? एसेट डेबिट हुआ मतलब बढ़ा, और क्रेडिट हुआ मतलब घटा. तो ये कैश अकाउंट का डेबिट्स है. ये इतना कैश क्या हुआ? बढ़ा, आया. और इतना कैश गया. तो दिस इज रिसीट, दिस इज पेमेंट. इतना पैसा आया, इतना पैसा गया. सिंपल. तो कितना आया आपके पास? 8 + 1 9 + 1 10,500. और गया कितना? तो आई थिंक 2200. तो 1-2 लाइन छोड़ के, एक लाइन भी छोड़ा तो भी वांदा नहीं है. 1 से 2 लाइन छोड़ के, एकदम तड़िए में मत लिखना. ये 1 से 2 लाइन छोड़ के कौन सा टोटल लिखना है आपको? 10,500 दोनों तरफ लिखना है. ठीक है, 10,500 दोनों तरफ लिखना है. और छोटा वाला जो है 2,200 माइनस करना है. तो आपको कितना मिलेगा? 8,300. ठीक है. इसके सामने क्या लिखना है आपको? बाय. बैलेंस. बाय क्योंकि क्रेडिट में है, बैलेंस क्योंकि डिफरेंस है. सीडी की बीडी? सीडी. सीडी स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग. डेट क्या होगी? 31/1/10. मंथ एंड पे आप करते हो, राइट? क्लोजिंग. सीडी स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग. सीडी के जगह लिख सकते हो CF, कैरीड फॉरवर्ड.
कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। बीडी माने बिगिनिंग, ब्रॉड डाउन। बीडी मतलब, बीडी का मतलब है ब्रॉड डाउन, फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 1/2/2010, 1/2/2010। गॉट इट। मतलब क्या कि जनवरी के महीने में इतना कैश आया, इतना कैश गया, तो बचा कितना। तो आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का, 8,300। ऑफिस में कितना रोकड़ा पड़ा हुआ है, 8,300। दैट इज द मीनिंग, दैट इज व्हाट इज गिवन बाय कैश अकाउंट। गॉट दैट ऑल ऑफ यू। दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट अ कैश अकाउंट। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बैलेंस मतलब इतना पैसा बचा हुआ है। अब एक और नई चीज सीखनी है आपको यहाँ पे। देखो, ध्यान से देखो इस अकाउंट को, गौर से देखो इस अकाउंट को, ठीक है। मुझे बताओ, विच साइड ऑफ कैश वाज ग्रेटर, डेबिट साइड। डेबिट बड़ा था, क्रेडिट छोटा था, और हमने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस सीडी, जो बन गया टू बैलेंस। इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस, इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डेबिट बैलेंस इन एनी अकाउंट। डेबिट बैलेंस मीन्स debit side is greater than the credit side. Whichever side is greater, that is the nature of balance. Whichever side is greater, that is the nature of the balance. डेबिट साइड बड़ा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। दो ही प्रकार के बैलेंस पॉसिबल है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ओके, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ऑल एक्सपेंसेस will show debit balance. All expenses will show debit balance. All incomes will automatically show credit balance. Expenses will always show debit balance. Incomes will always show. Assets will always show debit balance. Liabilities will always show credit balance. सर ये पक्का हर बार रूल सेम रहेगा, हर बार 100%, 110%, कभी ये रूल वायलेट नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, ऑल एक्सपेंसेस विल शो डेबिट बैलेंस, माने डेबिट साइड विल बी ग्रेटर देन क्रेडिट। सर इक्वल हुआ तो जीरो बैलेंस, इक्वल हुआ तो जीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी एक्सपेंस का क्रेडिट साइड बड़ा हो जाए। एक्सपेंस का कभी क्रेडिट डेबिट से बड़ा हो ही नहीं सकता वैसा। So expenses will always show which balance? Debit balance. Incomes, credit balance. Assets, debit balance. Liabilities, credit. Repeat. Expenses will always show debit balance. Incomes will always show credit balance. Assets, debit balance. Liability, मतलब क्या, एसेट में हर बारी which side will be greater? Debit side. Liabilities में हर बार which side will be greater? Credit side. एक्सपेंस में हर बार विच साइड विल बी ग्रेटर, डेबिट। इनकम में हर बार क्रेडिट। एसेट्स में हर बार विच साइड ग्रेटर, लाइबिलिटीज में क्रेडिट। एक्सपेंस में, इनकम्स में कौन सी साइड बड़ी होगी हर बार, एक्सपेंस में। लाइबिलिटीज में कौन सी बड़ी होगी, क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी। और एसेट्स में डेबिट ही बड़ी। एसेट्स में कौन सी साइड छोटी होगी, क्रेडिट। लाइबिलिटीज में कौन सी साइड बड़ी होगी, लाइबिलिटीज में कौन सी साइड बड़ी होगी, लाइबिलिटीज में कौन सी साइड बड़ी होगी, क्रेडिट। एक्सपेंस में कौन सी साइड छोटी होगी, क्रेडिट। इनकम में कौन सी साइड छोटी होगी, इनकम में कौन सी साइड बड़ी होगी, बड़ी होगी। इनकम में बड़ी वाली साइड क्या होगी, क्रेडिट। लाइबिलिटी में बड़ी वाली साइड क्रेडिट। एसेट में बड़ी वाली साइड, एक्सपेंस में छोटी वाली साइड क्रेडिट। इज दिस क्लियर? ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ये रूल यूनिवर्सल है, कभी वायलेट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, वेरीफाई करके देखते हैं। मुझे बताओ कैश क्या होता है, एसेट। बैंक जनरली क्या होता है, एसेट। बिल्डिंग, कैपिटल, लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल। परचेज, एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम। राम, debtor or creditor, asset or liability, depending on the situation. Discount allowed, expense. Sales,
income and drawings. Reduction of capital is like an asset. Capital is like a liability. Drawings क्या करता है? कैपिटल को कम करता है. It's like an asset. कैपिटल मतलब ओनर ने डाला है, अपने को देना बाकी है. ड्राइंग मतलब वो लेके गया, अपने को लेना बाकी. सॉर्ट ऑफ एन एसेट. हम माइनस करके दिखाते हैं कैपिटल में से. ओके, लेट्स वेरीफाई देम. बैंक, वैसे देख के बताओ कौन सा साइड बड़ा होना चाहिए? होना चाहिए. एसेट है ना, देखते हैं. है पक्का है. 7,700 है. 7,700 है, एकदम करेक्ट है. और माइनस करना है छोटे वाले को. 5,500 आ रहा है डिफरेंस. ओके ठीक है, 5,500 डिफरेंस है. क्या लिखा जाए यहाँ पे? बाय बैलेंस सीडी की बीडी सीडी. बाय बैलेंस सीडी बराबर है. दिस इज ऑन विच डेट? 31/110. बाय बैलेंस सीडी ऑन 31/110, which will become नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में क्या? टू बैलेंस बीडी. टू बैलेंस बीडी. 5,500 on 1/2/10. 1st February 10. What is the nature of the balance? Debit balance, right? Debit balance. Asset is greater, debit side is greater than credit side, so we call it debit balance. Now, how to interpret this? You know, bank is an asset, right? You know, bank is an asset. This is the debit side, this is the credit side, right? What do you mean? When do you debit bank? Look at the board, look at the screen, beta. Some important thing is going on. बैंक में डेबिट कब करते हो आप? बैंक रिसीव समथिंग, राइट? सो बैंक इंक्रीजेस. ये पैसा बैंक में आया और ये पैसा बैंक से, तो ये क्या है? अरे ये 5,500 बैलेंस मतलब इतना बचा. बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस इसको बोलते हैं जो बैलेंस आपका बच गया. कितना बचा हुआ है बैंक में बैलेंस? 5,000. बैंक में कितना रुपया पड़ा हुआ है? 5,000. कल उठ के आपको कोई पेमेंट करनी है, आप क्या चेक करोगे? लेजर. कितना बैलेंस बचा? 5,500. किसी को 5,000 की पेमेंट करनी है, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं. किसी को 7,000 की पेमेंट करनी है, कर सकते हैं कि नहीं? फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक कौन सा अकाउंट होता है? ये करंट अकाउंट. इसमें आपको एक फैसिलिटी मिलती है जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. तो ये बैलेंस नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. बैंक इज एन एसेट. Normally it will show which balance? Debit. Debit side will be greater, but sometimes credit side can also be greater in bank. उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. उसको कहते हैं बैंक मतलब आपका पेमेंट ज्यादा है, रिसीट आया कम, गया ज्यादा. जैसे भी एग्जांपल आ गया. तो बैंक दोनों बैलेंस दिखा सकता है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. बट जब डेबिट दिखाता है तब वो एसेट है, और जब क्रेडिट बैलेंस दिखाता है तो वो एसेट नहीं है, लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी. रिमेंबर क्लासिफिकेशन के वक्त भी किया था. बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक अ लोन टेकन फ्रॉम बैंक. ओके, इंटरप्रिटेशन क्लियर? कैश और बैंक का दोनों का मोर और लेस सेम ही है. दोनों का डेबिट मतलब पैसा आया और क्रेडिट मतलब पैसा. कैश और बैंक, डेबिट मतलब पैसा, क्रेडिट मतलब पैसा. कैश और बैंक, डेबिट मतलब पैसा, क्रेडिट मतलब पैसा. इज दिस क्लियर? और बैलेंस मतलब पैसा. बस इतना पैसा आपके पास है. बढ़ते हैं बिल्डिंग पे. बिल्डिंग क्या है आपकी? एसेट है. डेबिट हुई मतलब बिल्डिंग बढ़ी आई, और क्रेडिट हुई मतलब बिल्डिंग गई घटी. तो क्या है टोटल? देखो कौन सा साइड बड़ा होना चाहिए? वैसे तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसको क्या बोलते हैं? एक नाम बोलते हैं, कल बताया था. जीरो बैलेंस. इस अकाउंट का एक नाम है टैलीड अकाउंट या बैलेंस्ड अकाउंट. दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस. both the sides are balanced, same. So balanced account या टैलीड अकाउंट. इज दिस क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे.
ओके, तो ये टैलीड है, मतलब क्या इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, बिल्डिंग जितने की आई उतनी की पूरी बेच दी। अब कोई बिल्डिंग है आपके पास, कुछ है बिल्डिंग, नो बिल्डिंग इन द नो बिल्डिंग इन द business. Gone, finished. Go to capital account. Let's see capital account. Which side should be greater according to you? Internal liability. क्रेडिट ही बड़ा होगा, कभी डेबिट बड़ा नहीं होगा। बहुत रेयर सिचुएशन में कैपिटल का डेबिट बड़ा हो सकता है, बहुत रेयर सिचुएशन कैपिटल का डेबिट बड़ा हो सकता है। वो कब होगा, जब इंसॉल्वेंट हो गया। जब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो ना, बहुत सारे लॉस आ जाते हैं, लॉस 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 यहाँ पे आता है, लॉस डेबिट कम होता है कैपिटल लॉस की वजह से। तो इतने सारे लॉस आ जाते हैं कि इतना हैवी हो जाता है कि डेबिट इज ग्रेटर देन, आपका मूडी साफ और आपका एक्स्ट्रा लॉस है, मतलब बिजनेस आपको देगा नहीं, बिजनेस आपसे लेगा पैसे, बोल रहे हैं भाई घर से लेके आ, घर से लेके आ, घर से लेके आ, इतना लॉस हो गया। तो इंसॉल्वेंसी के केस में कैपिटल विल शो डेबिट बैक, अदरवाइज जनरली 99% कैपिटल विल ऑलवेज क्रेडिट बैक। अभी के लिए तो टेंशन वाली बात नहीं है, कैपिटल क्रेडिट लायबिलिटी। Which side is greater? Credit side, 8 plus 4, 12 plus 3, 15. 15. And what is the difference? 15. 15 minus 0 is 15. ऊपर वाले समय कुछ लिखा नहीं है, लिखना क्या पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, नथिंग नथिंग, नील नील कुछ नहीं, सिंपली टोटल इट लीव इट, कुछ भी मत लिखना, नील, टू बैलेंस ईडी, बाय बैलेंस ईडी, नील, नथिंग, नो नीड टू मेंशन इट। If the total is same, do the total, leave it. Okay. Over here, what will you write to this 15? To what? Balance CD ke BD? CD. Closing of the month will become in the next month what? By balance what? BD. By balance BD. Is that clear? This is 15,000. Right? On 1 to 10, 1 to 10. टोटल के ऊपर क्लोजिंग, टोटल के नीचे ओपनिंग। आर यू ऑल विथ मी? घर वाले, वीडियोज ऑन, पलक, जिया, हीर, कॉमिक, समझाए से बैलेंसिंग। व्हाट नेक्स्ट? परचेज, ऑटोमेटिकली विच साइड विल बी ग्रेटर? डेबिट साइड। व्हाई? एक्सपेंस, एक्सपेंस, तो डेबिट ही बड़ा होगा, क्रेडिट बड़ा हो ही नहीं सकता। करिए टोटल, 114 plus 4, 18, 28, 4,000, 4,000 minus 0 is 4,000, बराबर है? What will you write? बाय, क्रेडिट में तो बाय बैलेंस CD on 31/1/10. 31/1/10 last date of the month. What will this buy balance CD in the next month become? To balance BD. To balance BD 4,000. To balance BD 4,000 on 1 to 10. On 1 to 10. On 1 to 10. What do you mean by this? परचेज इतना से डेबिट हुआ, व्हाट इज परचेज अकाउंट? डेबिट हुआ मतलब इंक्रीजेस, तो कितने से बढ़ा है वो? 4,000। क्या हिंट है, मतलब जनवरी के महीने में 4,000 के गुड्स आपने परचेज किए हुए हैं, सिंपल, राइट? जैन के महीने में कितने का माल खरीदा है? 4,000। कितने का परचेज हुआ है? 4,000। तो आपको बेचना है माल, तो आप सीधा क्या चेक करोगे? परचेज लेजर चेक करोगे। परचेज लेजर में देखोगे माल है कि नहीं, माल है तो आप कमिट कर दोगे डेटर को, लेके जा माल, बेच दिया आपने, गोडाउन जाने की जरूरत नहीं है, सीधा परचेज लेजर देखो, आंसर मिल जाएगा आपको, माल है कि नहीं। अलग अकाउंट, परचेज रिटर्न अलग, परचेज अलग, रिटर्न हुआ है तो दोनों को मैच करके देखो कितना माल है नेट, सॉरी वो एंड में, ईयर एंड में होगा, ईयर एंड में परचेज रिटर्न गोस टू परचेज। ओके, अच्छा, कैपिटल अकाउंट रह गया अपना इंटरप्रिटेशन के लिए। ये क्रेडिट्स में दिया हुआ है, कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब क्या? इंक्रीजेस, मतलब क्या? इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? 15,000 का मतलब क्या? बैलेंस,
15,000 का पेमेंट था। एग्जैक्ट, ओनर ने बिजनेस में कितना डाला है? 15,000, बिजनेस को वापस देना, इंटरनल लायबिलिटी। कितना पैसा ओनर ने डाला हुआ है अभी तक? 15। समझ में आया सबको? कैपिटल कितना ओनर का पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज अ बैलेंस। कम टू डिस्काउंट रिसीव, वेरी सिंपल, एक ही है चुन्नू मुन्नू। व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव? इनकम। तो विच साइड विल बी ग्रेटर? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड। राइट दैट टोटल दोनों बाजू, देन 400 माइनस 0 इज 400। क्या लिखना है यहाँ पे? टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, डेट 31/110. What will this two balance CD become? By balance BD 400 रुपया बराबर छे on 1/2/2010, on 1/2/2010. Is that clear? On 1/2/2010. Sorted? Correct? Sorry? Clear with this? बढ़े आगे 1/2/2010. Then next one, what does it indicate? Simple बता दो। डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या दिख रहा है? ये 400 रुपया जनवरी का। what does it mean? You have earned an income of how much? 400 till the month of Jan. फरवरी के बिगिनिंग तक आपने 400 रुपया अर्न कर लिया है, बराबर है। फिर आगे बढ़ना है वहां से। गो टू राम, गो टू राम। हु इज राम? राम कौन है? कोई भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लुक एट द अकाउंट एंड डिसाइड, डेटर है कि क्रेडिटर है? डेटर है। विच साइड इज ग्रेटर? डेबिट साइड इज ग्रेटर। सो दिस इज 1,700 माइनस 1,200, तो कितना होता है? 500। डेटर है, ये समझ में आया? डेबिट साइड बढ़ा है, मतलब पैसा लेना है कि देना है? लेना है। कितना लेना है? 500। इसी को कहते हैं बैलेंस। बाय बैलेंस व्हाट? CD। बाय क्योंकि क्रेडिट पे है, बैलेंस क्योंकि डिफरेंस, CD क्योंकि क्लोजिंग। 31/110. What will this buy balance CD become? To balance BD. To balance BD 500. To balance BD 500. बात समझ में आ रही है? What is the nature of the balance? Debit balance or credit balance? Debit balance. Debit balance. Which side was greater? Debit. So it's debit balance. Is he a debtor or creditor? Debtor. Debtor म्हणजे asset. Assets will always have debit side greater. Clear? Assets का हर बारी डेबिट साइड बड़ा होगा और होगा ही। What if इसका क्रेडिट साइड बड़ा होता? राम का तो क्रेडिटर बन जाता, तो उतना पैसा देना बाकी है। टू बैलेंस शीट, राइट? व्हाट अबाउट डिस्काउंट अलाउड? वेरी सिंपल, व्हाट इट इज? हाँ, एक्सपेंस। विच साइड विल बी ग्रेटर? डेबिट साइड का टोटल लिख दो। 100 100 100 माइनस 0 100। फिर क्या लिखने का? बाय बैलेंस CD के BD CD ऑन 31/110। और ये बन जाएगा नेक्स्ट मंथ में क्या? टू बैलेंस BD कितना? 100 ऑन विच डेट? 1/2/10। सॉर्टेड? ऑन 1/2/10 it will become 100। सॉर्टेड यहाँ तक? on 1/2/10 it will become 100 rupees. Opening balance 100, indicating what is this discount allowed for the previous month? Expense. Business ने इतना expense incur किया हुआ है। What is the nature of this balance? Debit balance or credit balance? Debit balance. RAM में debit balance, discount received में credit balance, cash में debit balance, बैंक में, building में no balance, capital में credit balance, purchase में debit balance. How to interpret balance? Whichever side is greater, that is called as the nature of balance. Okay? Confusion में क्या हो जाता है? सर ये तो buy लिखा है, ये बाय बैलेंस CD है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। दैट इज रॉन्ग। अगर तुमको बैलेंस यहां से देखना है ना, तो ओपनिंग देखने का।
क्या देखने का? ओपनिंग. Whatever opening balance you find, that is the actual nature of balance, not the closing one. Which one? Opening. दिख रहा है? Opening debit, opening debit, opening है ही नहीं, opening credit, opening debit. Opening balance देख के nature determine करना. ठीक है? बताओ मुझे वापस, एक्सपेंस हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाएगा? इनकम, एसेट, लायबिलिटी. एक्सपेंस में कौन सा साइड बड़ा होगा? इनकम में, एसेट्स में, लायबिलिटीज में. सेल्स क्या होता है? सेल्स इज इनकम. विच साइड इज ग्रेटर? ऑटोमेटिकली क्रेडिट. लिख दो टोटल. व्हाट इज द टोटल? 5,000. राइट इट एट बोथ द प्लेसेस. 5 minus 0, 5. What will you write? To balance CD on 31,110 will become by balance BD on 1 to 10, 5,000. What is the nature of the balance? Credit or debit? Credit. बराबर है. इंडिकेटिंग व्हाट? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बैलेंस 5 का. ऑलरेडी आपने इस महीने में कितना कमाया? 5,000 कमाया. इस महीने में आपने कितना कमाया? 5,000 एज योर इनकम, सेल्स इनकम. गॉट दैट? समझाइए बद्दा ने, घरवाड़ा ने. एनी डाउट्स यू आस्क प्लीज. यू डोंट अंडरस्टैंड. घर वालों को कोई डाउट? चलो लास्ट वाला है ड्रॉइंग्स. विच साइड ऑफ ड्रॉइंग्स विल बी ग्रेटर? हमेशा डेबिट. हमेशा डेबिट, क्योंकि इट इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. इट इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. मतलब लाया, ड्राइंग मतलब लेके गया, तो हमेशा डेबिट ही बड़ा होगा. डेबिट का टोटल लिखो दोनों बाजू. 2000, 2000 माइनस 0 कितना होता है? 2000. और क्या लिखना है यहाँ पे? बाय बैलेंस सीडी के बीडी. सीडी भैया, सीडी 31,110. क्लोजिंग है, बनेगा नेक्स्ट मंथ का टू बैलेंस बीडी 2000. दिस इज ऑन 1 to 10. 1 to 10. Is that clear? Can it ever have credit balance? Can ever its credit side be greater than debit side? Impossible. हमेशा डेबिट बड़ा होगा. क्या इंडिकेट करता है? म्हणजे काय? ओनर ने बिजनेस में से कितना विड्रॉ किया अब तक? 2,000. अब तक जनवरी में विड्रॉ कर लिया. तो आप कैपिटल को देखो और ड्रॉइंग्स को देखो. क्या मुझे बता सकते हो ओनर का नेट पैसा कितना पड़ा हुआ है बिजनेस में? 13,000. 13,000 नेट कैपिटल पड़ा हुआ है. समझा कैसे? 15 लाया, 2 लेके गया, तो नेट कितना पड़ा हुआ है अभी फिलहाल? 13. बराबर है. फिर आप प्रॉफिट लॉस करोगे, जो भी होगा वो ईयर एंड. ये सीन कब तक चलते रहेगा बिजनेस में? ऐसा 12 महीने तक. 12th मंथ तक यही चालू रहेगा. 12 मंथ्स के एंड में आप बनाते हो फाइनल अकाउंट. उधर क्या चेंजेस होंगे, क्या होगा, सब मैं बताऊंगा. अभी इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट सब आप कैलकुलेट करो. ओके. या हाँ हुआ ना. किधर है ये? 15 किया ना यहाँ पे. दोनों को अलग अलग रखा है ना. 13 तो हमने नेट बोला. नेट नहीं क्या जाएगा. एक 15 इधर और 2 इधर. अब एनी पॉइंट ऑफ टाइम नेट कैलकुलेट कर सकते, बट दोनों दिखाते सेपरेट है. ठीक है. नेक्स्ट हम या कर सकते हैं. जर्नल खाली पहले मैनुअल बुक्स है ना, तो 2 बुक्स में आपको क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस चेक. और दूसरा क्या है, जर्नल डेट वाइज जाता है, ये अकाउंट वाइज जाता था. 1 महीने का जर्नल करने के बाद एक साथ पूरा लेजर भी बना सकते थे आप. ऐसा होता था. मेनली 2 बुक्स वेर फॉर डबल चेक, डबल. अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में डायरेक्टली लेजर में ही होता है. आपका एंट्रीज है ना, जर्नल स्किप ही हो जाता है ऑलमोस्ट. डायरेक्टली लेजर से ही कहानी स्टार्ट होता है. बराबर. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आता. okay? क्योंकि डेट वाइज और अकाउंट वाइज दोनों ये दिखा देता है. जर्नल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है. ऐसा है. बढ़े आगे. थर्ड प्रॉब्लम. सी, थर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं ऑन टॉप. कैन यू ऑल सी दैट? दे आर कॉल्ड एज, सी डेट दिया है, बैलेंसेस एज ऑन 1/1/2010.
1/1/2010 is the first date or the last date? So these are called as opening balance. These are called as, हमने पहले दो प्रॉब्लम में कोई ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, देखे थे, वो क्या इंडिकेट करता था? These are the first month of the business. These are the first month of the business. That's why there weren't any opening balance. हमने किया क्लोजिंग, हमने कैलकुलेट किया, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग किया, लेकिन शुरुआत में कुछ ओपनिंग नहीं था. अभी जो सम कर रहे हैं ना, इज दिस द फर्स्ट मंथ और अ कंटिन्यूइंग मंथ? ऑनगोइंग बिजनेस का आप बना रहे हो. बात समझ में आई? तो लेजर के होते हैं टोटल 3 पार्ट. लेजर के होते हैं टोटल 3 पार्ट. क्या हो रहा है तेरे को? प्रॉब्लम है? बोल बोल. लेग रूम, क्लॉस्ट्रोफोबिया, कुछ है? नाउ किधर था अभी वंडरिंग में? बाय द वे किधर घूम के आया? ज्यादा साफ. अच्छा एलईडी, अच्छा प्रोजेक्टर वाला. चलो ध्यान दे भाई. अभी दिस फर्स्ट 2 सम्स वेयर फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस. पहले मंथ ऑफ बिजनेस में थे, मतलब ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था. हमने क्या की? सिर्फ पोस्टिंग की और क्लोजिंग बैलेंस था. ये वाले सम अभी जो करने वाले हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है. दिस इज द फर्स्ट मंथ और अ कंटिन्यूइंग मंथ? कंटिन्यूइंग मंथ. ठीक है. तो शुरुआत करते वक्त पहली चीज आपको सीधी पोस्टिंग नहीं करनी है, बैलेंस लिखना है. ये दिख रहा है आपको यहाँ का क्लोजिंग? अब आप यहां से शुरू कर रहे हो, तो पहली चीज क्या आएगी? ऐसा समझो कि फरवरी का बना रहे हो, तो फरवरी की शुरुआत कहां से हो रही है? ओपनिंग बैलेंस. तो पहला आइटम आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, फिर पोस्टिंग करोगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस. खाली एक चीज एक्स्ट्रा हो गई. क्या लिखना है पहले? ओपनिंग. ओपनिंग मतलब कहां से टपका हो, समझा? ओपनिंग ऑफ दिस मंथ इज प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग, वहां से आया हुआ है. बात समझ आई? तो लेजर टोटली हैज गॉट 3 पार्ट्स. व्हेनेवर यू डू एनी लेजर का प्रॉब्लम, ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे. 3 पार्ट होंगे. क्या? व्हाट आर द 3 पार्ट्स? ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. पहले दो प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस नहीं थे, इंडिकेटिंग दैट वाज द फर्स्ट मंथ. बट अभी वाले सम से ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. इज दिस क्लियर? कितने अकाउंट्स बनाने हैं वो क्वेश्चन में दिए होंगे. यहां पर पढ़ो, कुछ दिया है. क्या बोला है? प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट. कैन यू सी दैट? तो आपने कितने ड्रॉ किए हुए हैं? 7 अकाउंट किए हुए हैं. देखो चेक करो 7 ही है क्या. देखो कैश है, बैंक है, मशीन है, कैपिटल है, राम्स लोन एक नहीं बनाया होगा आपने ऊपर. हाँ राम्स लोन नहीं बनाया होगा, राइट? आपने नाम नहीं लिखे ना ऊपर. हाँ ठीक है, 7 ड्रॉ किए हैं. ठीक है, ओके. तो आपको और ड्रॉ करना है राम्स लोन, फिर संजय है. क्या संजय है? लॉस ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस तो है. बस 3 और ड्रॉ करना. 3 more accounts you have to draw. Which 3? Which 3? Ram's loan, loss on sale and advertising. 7 के तो दिए हुए हैं. मुझे लगा सबके दिए थे, सबके नहीं दिए. 7 के दिए हुए हैं. 3 और बनाने आपको. कौन से 3? राम्स लोन, लॉस ऑन सेल एंड एडवर्टाइजिंग. ये भी बना दो. चलो फटाफट. सर कैश बैंक અને કેપિટલ ને કેમાં લેવાનું? ક્રેડિટ કે ડેબિટ? હમણાં ડિસ્કસ કર્યું આપણે. અરે તો ક્યારે કેપિટલ વધારે મળે? ઇન જનરલ શું હોય? ક્રેડિટ. कैपिटल क्रेडिट. बैंक कैश. कैश तो ऑलवेज. 3 और अकाउंट्स ड्रॉ कर लो. चलो तो टोटल कितने हो गए आपके? 10 अकाउंट हो गए ये सब में. बराबर है ना? हेलो, चलो ड्रॉ करो. This is the last sum for the day. Full. सैटरडे को क्लास रखोगे कि सैटरडे क्लास है.
सैटरडे क्लास है भाई, रिवीजन के लिए 2 वीक से बोल रहा हूँ, टेस्ट 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 घर पे करना है रिवीजन। या वीक मत बोल, 10 દિવસ થઈ ગયા ટેસ્ટ ને અનાઉન્સ। ये सब में लिखना है हेडिंग डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। चलो लेट्स स्टार्ट। What are the names of accounts? Can you tell me? Starting with cash account, then bank account or cash, bank, capital, machinery, Sanjay, drawings, wages, और Ram's loan, loss on sale, और भी एक होगा ना, और एक होगा, 10 है ना? अरे संजय, संजय, कोई ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई भी ऑर्डर में अकाउंट्स बना, अकाउंट्स बनना चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग। सबसे पहले पोस्टिंग से पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ओके, पोस्टिंग से पहले क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस। जो अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया उसका लिखो, जिसका नहीं दिया है उसका लीव, उसका नील है। सो थर्ड सम वी आर डूइंग। मुझे बताओ कैश विल हैव व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? व्हाई? एसेट। तो कैश का कितना दिख रहा है आपको बैलेंस? व्हाट इज द बैलेंस इन कैश? सॉरी 5000। तो क्या लिखना है, टू बैलेंस बीडी की बाय बैलेंस बी? समझा? हेलो, कैश विल हैव व्हिच बैलेंस, डेबिट। व्हाई? एसेट। तो कैश में क्या लिखना है शुरुआत में, टू बैलेंस बीडी कितना, 5000, डेट है 1110, ओपनिंग बैलेंस। ये कहां से टपका, लास्ट मंथ का क्लोजिंग, जो अब तक कर रहे हैं ना हम क्लोजिंग, अब वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट स्टेप, सबका ओपनिंग बैलेंस लिखना है। वैसे मुझे बताओ बैंक का क्या होगा? चल दूसरा सम कर रहे हैं। ये प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग 5 था, ये मंथ के बिगिनिंग में 5 है, मतलब ऑलरेडी आपके पास 5000 कैश पड़ा हुआ है। बैंक में क्या होगा, डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी के सीडी बीडी, ये ओपनिंग है 1110 को, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग, ये मंथ का ओपनिंग कितना है 2000। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका 2000 का मतलब बैंक बैलेंस, ऑलरेडी बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है। तीसरा अकाउंट कैपिटल, व्हाट इज द बैलेंस, क्या लिखोगे, टू बैलेंस बाय बैलेंस, बाय बाय क्रेडिट,
लाइबिलिटी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कब से, एसेट्स विल हैव डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम्स कैपिटल, इंटरनल लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। तो क्या लिखने का, बाय बैलेंस बीडी कितना है, हाँ 12,000। ये क्या इंडिकेट करता है, 12,000 का मतलब कैपिटल એટલે बिजनेस ओनर ने दिया इतना पैसा ओनर ने डाला हुआ है वेदा जी, समझा, इतना पैसा ओनर ने डाला हुआ है। मशीनरी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, टू की बाय, टू बैलेंस बीडी की सीडी, बीडी का है बीडी, एसेट ओपनिंग बैलेंस बीडी, ओके, एसेट है इसके लिए टू डेबिट एंड बीडी मतलब ओपनिंग, कितना 4,000 बराबर 6। डेट सबका होगा फर्स्ट डेट, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, नेचर ऑफ बैलेंस, पक्का, कभी क्रेडिट हो सकता है, जिंदगी में नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। टू बैलेंस बीडी ड्रॉइंग्स कितना है, पढ़ो जरा वहां पे 3,000, क्या इंडिकेट करता है ये 3, ऑलरेडी इतना विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया आपको मशीनरी अकाउंट, मशीन हो गया। वेजिस का क्या है, टू की बाय टू, एक्सपेंस, वेजिस आर एक्सपेंस विल हैव डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितना है 1000, क्या इंडिकेट करता है ये, वेरी गुड, 1000 ના વેજીસ ઓલરેડી પે કરેલા છે ઇન ધ પ્રીવિયસ મંથ, કરેલા છે। હવે નેક્સ્ટ મંથ માં શું થાય છે જોશું। नेक्स्ट संजय भैया का कौन सा बैलेंस है, संजय भैया का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो टू की बाय बैलेंस बीडी की सीडी, बीडी लिखना है सब में, ओपनिंग बैलेंस है भैया, ओपनिंग बैलेंस है, बीडी ही लिखना है, कितना लिखोगे, उधर दिया है सीआर करके दिख रहा है क्रेडिट, वरना आपको पता चल जाता अपने आप, कुछ सोच सकते थे, संजय नाम का इंसान है तो डेबिट ही होना चाहिए, राहुल नाम का इंसान है तो क्रेडिट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है, वो देना चाहिए, आइदर ही कैन बी योर डेटर और क्रेडिट। सो हियर ही इज योर व्हाट, क्रेडिटर बेटा, ही इज योर क्रेडिटर 3,000, मतलब क्या, ये बैलेंस का मतलब क्या, इसको पैसा देना है कि इससे पैसा लेना है, इसको देना है, कितना देने का, ये 3 लावारिस, इनके कोई बैलेंस है तो लिखने की जरूरत है, नॉर्मल हम लोग करते आ रहे थे, नो माई बाप अभी से आ रहे हैं, अभी पैदा हुए हैं, अभी पोस्टिंग होगी, ये महीने के एंड में इनके भी बैलेंस आ जाएंगे, ये भी लीग में आ जाएंगे, अभी बेचारे नए नए आए हैं। चलो पोस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स पोस्ट। पहली एंट्री मुझे स्प्लिट करके जो बताएगा उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ लो। कैश बैंक मशीनरी टू कैपिटल टू राम्स लोन, पहले इसका मतलब बताओ मुझे, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, बैंक मशीन इंट्रोड्यूस एंड लोन टेकन बराबर છે। હવે એને સ્પ્લિટ કરો, कैश टू कैपिटल 2000 होगा, Cash to Ram's loan. सॉरी 3000 होगा, Cash to capital 3,000. यहाँ पर पैसा नहीं है ना, जो बैंक में पैसा डाला है वो कैपिटल 3000, कैश टू राम तक फायदा हो गया। हाँ यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि जो लोन का पैसा वो बैंक में डाला है कि कैश में ही डाला है। एग्जैक्टली, लोन का पैसा बैंक में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, लेकिन बैंक में 4,000 है ना, लोन 5,000। बैंक में स्प्लिट भी हो सकता है, स्प्लिट भी हो सकता है, 4,000 लोन बैंक में और 1,000 कैश, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज काफी सारी हैं। जनरल अजम्पशन क्या है, लोन कैश में, जनरल अजम्पशन इज लोन कैश में आता है। तो आपने लोन कितने का लिया है 5, तो आपकी पहली स्प्लिट एंट्री हो जाएगी कैश टू राम्स लोन कितना 5। अगर 5 कैश लोन में है तो ओनर कितना लाया, तो कैश टू कैपिटल कितना 3, ये बात समझ आई, बस यही मेन था।
अच्छा बैंक कौन लाया? बैंक मतलब बैंक में बैलेंस कौन लाया? ओनर लाया। तो बैंक टू कैपिटल आएगा कि बैंक टू लोन? अभी सब कुछ कैपिटल, लोन पहले हो गया 5 का, अभी सब कुछ कैपिटल। बैंक टू कैपिटल कितना है? 4। और तीसरा 2000। समझ में आया ये स्प्लिट? खाली पहला स्प्लिट कैश टू लोन वो कर लेने का। कैश टू लोन, हाउ मच इज कैश टू लोन? 5। कैश टू लोन हो गया ना, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। फिर जो भी बचा माल है वो कौन लेके आया? ओनर। बाकी सब कैपिटल। समझाणु? स्प्लिट समझाणु आनु? घर वालों को समझा लो? एनी डाउट? चलो इसको करते जाओ। अभी अभी करते जाओ सब लोग, खुद से ट्राई करो। एक एक करना, जंप मत मारना। पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बेबी स्टेप्स। चलो कैश टू राम्स लोन, कैश में लिखो टू राम्स लोन अकाउंट 5000, और राम्स लोन में लिखना है बाय कैश 5000। ठीक है, कैश में टू राम्स लोन में बाय कैश। देन कैश टू कैपिटल था 3, तो कैश में टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में बाय कैश 3। फिर बैंक टू कैपिटल, बैंक में टू कैपिटल आज लेक्चर में फोन करो છું। बैंक में टू कैपिटल कितना था? 4000। कैपिटल में आएगा बाय बैंक। और मशीनरी टू कैपिटल, मशीनरी में टू कैपिटल 2, और कैपिटल में बाय मशीनरी। आया ये एंट्री आया? ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? स्प्लिट एंट्री नंबर 1। ठीक है, 2 3 4 खुद से करो स्प्लिट। क्या करोगे स्प्लिट? कैश बैंक संजय लोन लॉस टू मशीन। हाउ विल यू स्प्लिट? कैश टू मशीन हाउ मच? 2000। बैंक टू मशीन 1000। संजय टू मशीन लॉस टू मशीन 1500। मतलब क्या है इस एंट्री का? मशीनरी सोल्ड पार्टली ऑन कैश, पार्टली बाय चेक, पार्टली ऑन क्रेडिट एट अ लॉस। लॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता? ऑन एसेट्स होता है, इसलिए वहां पे दिखा। तो कैश टू मशीन 2000, कैश में लिख दो टू मशीन 2000, और मशीन में लिखना है बाय कैश 2000। कैश में टू मशीन, मशीन में बाय कैश। बैंक टू मशीन, बैंक में टू मशीन, मशीन में बाय बैंक। बाय बैंक। देन संजय टू मशीन 1500, संजय में टू मशीन, संजय में टू मशीन, मशीन में बाय संजय। And then loss on machine to machine.
लॉस ऑन सेल में टू मशीन 1500, और मशीन में बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, वेजेस एडवर्टाइजमेंट टू कैश टू बैंक, हाउ शैल यू स्प्लिट? अभी इसमें भी दोनों हो सकता है, थोड़ा कैश थोड़ा बैंक। wages to cash. सो अमाउंट का हिंट पकड़ना है, वो अज्यूम करना है। वेजेस का क्या होगा? कैश, एंड एडवर्टाइजमेंट का क्या होगा? बैंक, बिकॉज द अमाउंट्स आर सेम। गॉट इट? assume that way. So wages to cash and advertisement to bank. So wages to cash, wages में to cash 500 और cash में by wages 500। wages में to cash में by बराबर 6। then advertisement to bank, advertising में to bank 1000, advertising में to bank 1000 और बैंक में by advertising 1000। the last one, drawings to cash to bank, इसका अर्थ क्या हुआ? drawings to cash to bank, ऑफिस से भी लेके गया और बैंक से भी पैसा लेके गया। ड्रॉइंग्स टू कैश टू बैंक। तो हाउ विल यू स्प्लिट? ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक, राइट? So drawings to cash, thank you Rushi. Drawings to cash, drawings में to cash 1000 और cash में by drawings 1000। ड्रॉइंग्स में टू कैश, कैश में बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स में टू बैंक और बैंक में बाय ड्रॉइंग्स। खत्म। पोस्टिंग झाली, आता करायचा बॅलन्स। चलो हो गया ये कंफर्टेबल। यहाँ तक सबको देख लो, चेक कर लो, पोस्टिंग हर एक आइटम परफेक्टली, अकाउंट अमाउंट सब कुछ इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। या 10 days का जो transaction है, while we write, if the sum was given in journal on the same day, then we would have given two टू entries. सेपरेट एंट्री। Here we can't assume the amount, that's why we are taking that. Wages are given full and time. Yeah. We don't know how much wages is cash tag, how much advertisement is cash tag. That's why wages to cash and advertisement. There also you can club on the same day. Two entries are happening like this. You can. Common debit credit now भी हुआ तो भी कर सकते। और वो सेपरेटली भी लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं। But if common is there, then you तब तो करते ही। चलो हो गया यहाँ तक। सीधा छापना मत, टू 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 बाय 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 बाय। अपने दिमाग को बताओ, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। डीसी फैन है कोई? सब मार्वल फैन है, कोई फैन ही नहीं है। मार्वल डीसी मालूम है ना? सब मार्वल, नो वन डीसी। किसी को बैटमैन पसंद नहीं है? बैटमैन सुपर हीरो ही नहीं है ना?
No special powers. He's only rich. But technology. हल्क है यार, गामा रेज है। हल्क ने तो लोकी को नहीं वैसा नहीं, he has got supernatural powers ना। आयरन मैन has got that heart, that उसके वजह से उसका एनर्जी बढ़ गया ना, उसका सूट का एंड ऑल सब वहां से लेता है ना वो। हाँ सुपरमैन इज है, एक विचार सुपरमैन पे ही। नाउ दे आर इम्प्रूविंग सब, वो भी आ गया एक्वामैन, वंडर वुमन। चलो क्या करने का अभी इसके बाद, बैलेंस विच साइड ऑफ कैश इज ग्रेटर, शुड बी ग्रेटर। डेबिट ही बड़ा होना चाहिए कि क्रेडिट, पक्का किसी को लगता है क्रेडिट, बताओ मुझे। देख के नहीं, ऐसे हो सकता है क्या कभी क्रेडिट बड़ा, हो भी नहीं सकता, काहे नहीं हो सकता, जितना है उतना ही दे सकते हैं। उतना ही दे सकते हैं। एग्जैक्टली दैट इज द रूल ऑफ एसेट। एसेट डेबिट ही ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जितना होगा उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। बात समझ आई? तो डेबिट साइड ही बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो 5 + 5 10 13 15 आ रहा है। 15 माइनस 1500 कितना होता है, 13,500। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD डेट 31,110 will become to balance BD। क्या इंडिकेट करता है ये, कैश लेफ्ट इन द, इसको लेने का विथ बैलेंस BD। हेलो, ओपनिंग बैलेंस को भी ले लेने का टोटल में। टू बैलेंस बीडी लेके तो एमा 18,500 ले लो। अरे આવી ગયું ना, अरे આ ટોટલ કર્યું ને આપણે, तो એમાં 5 ले લીધા ને આપણે। हेलो, ओपनिंग बैलेंस को भी लेने का टोटल में सब कुछ, मतलब अभी कितना कैश पड़ा आपके पास, 13,500। ये अंदर ये 5 आ चुका है, वापस लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड महीने के एंड में हाउ मच कैश यू आर हैविंग, 13,500। अभी पहले महीने का 5 वो भूल जाने का, अभी कितना है 13,500 इंक्लूडिंग दैट 5,000 एवरीथिंग। गॉट इट? हेलो, बैंक विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट विथ ओपनिंग बैलेंस है, सब कुछ ले लेने का। 2 + 4 6 + 1 7 माइनस 2 कितना होता है 5। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD के BD, CD बनेगा क्या, टू बैलेंस BD। इज दिस डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सोचो, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, डेबिट साइड इज ग्रेटर, डेबिट बैलेंस है 5,000। क्या इंडिकेट करता है, व्हाट डज इट इंडिकेट, इतना पैसा भी बैंक में पड़ा हुआ है। 5 + 2 7 पड़ा है कि 5 पड़ा है, 5। वो 2 वाला सब हो गया ऊपर, और पैसा आया और गया, अब कितना पड़ा हुआ है देखो, 2 था पहले, फिर और 5 आया तो 7 हुआ, -2 गया तो 5 हो गया, अब कितना पड़ा हुआ है तो 5। थर्ड वाला कैपिटल विच साइड विल बी ग्रेटर, क्रेडिट ही बड़ा होगा, सिंपल सी बात है ना यार। डेबिट बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बहुत रेयरली, इनसॉल्वेंट, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये टोटल करो कितना, 12 + 3 15 + 4 19 + 2 21 आ रहा है, 21 21 और डिफरेंस भी 21, फॉरएवर 21। इधर आएगा टू बैलेंस CD के BD, CD, और ये बनेगा, शाबाश, बाय बैलेंस BD 21। सॉर्टेड, 1 2 10 को टोटल के ऊपर क्लोजिंग, टोटल के नीचे ओपनिंग, टोटल के ऊपर क्लोजिंग, टोटल के ऊपर नीचे, ऊपर क्लोजिंग नीचे ओपनिंग। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ मशीनरी का कौन सा सेट बड़ा होना चाहिए,
अच्छा देख के मत बोलो, होना क्या चाहिए, डेबिट होना चाहिए। चेक करो अभी, इक्वल है, वाह क्या बात है। इक्वल का मतलब क्या, डू नॉट हैव एनी मशीन, जितनी मशीन आई उतनी मशीन चली गई, बिजनेस में कोई बच्ची ही नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, टैलीड या बैलेंस्ड अकाउंट, बैलेंस्ड अकाउंट या टैलीड अकाउंट। व्हाट अबाउट ड्राइंग्स, व्हिच साइड विल बी ग्रेटर, डेबिट ही होगा कि क्रेडिट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 3 + 1 4 + 1 5 5 5, what will you write, by balance what, CD के BD, CD बनेगा क्या, टू बैलेंस BD के CD, BD एकदम बन जाएगा ना, 1 to 10 को एकदम, 1 to 10 को टू बैलेंस BD क्या इंडिकेट करता है, ये बैलेंस, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ अर्थ अर्थ, ओनर ने कितना निकाला है बिजनेस से, 5 टिल फेब्रुवरी, टिल फेब्रुवरी इसने कितना निकाल लिया, 5। ये 5 के अंदर ये 3 पड़ा हुआ है कि अलग है, मतलब 3 अलग और 5 अलग है, ऐसा 8 8 सब मिला के फेब्रुवरी तक कितना हुआ है, 5। बात समझ आई, तो क्या समझ में आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है क्लोजिंग के अंदर, अलग से लेने की जरूरत नहीं। तो आपको अगर लेजर को स्टडी करना है तो हर एक महीने का लेजर देखने की जरूरत नहीं है, फाइनल लेजर देखो सब आ जाएगा, उस दिन की पोजीशन आपको पता चल जाएगी, हर एक महीने को घड़ी घड़ी घूर के देखने की जरूरत नहीं, लेटेस्ट मंथ देख लो पता चल जाएगा। वेजिस देखो, वेजिस कौन सा साइड बड़ा होगा वेजिस में, डेबिट कि क्रेडिट, पक्का कितना है, 1500 1500 1500, क्या लिखोगे, आई बैलेंस सीडी के बीडी, सीडी बनेगा टू बैलेंस बीडी 1500। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट बैलेंस करेक्ट, by balance CD will become to balance BD। अर्थ बताइए, अर्थ मतलब क्या, 1500 का वेजेस का बैलेंस का अर्थ, फेब्रुअरी तक 1500 दे दिया, फेब्रुवरी तक 1500, जनवरी तक कितना दिया था 1000, फेब्रुवरी तक तो 1500 और 1000 2500 कि टोटल 1500, वो क्यूमुलेटिव होते जा रहा है, दिख रहा है हर एक महीने में। तो टोटल जैन और फेब का मिला के कितना वेजेस है, 1500। फिर मार्च के एंड में क्या पता चलेगा, मार्च के एंड का बैलेंस देख के क्या पता चलेगा, मार्च तक कितना दिया, अप्रैल तक कितना दिया, मई तक कितना दिया, सब आ गए उसके, बराबर है। राम्स लोन देखो, अभी राम्स लोन विच साइड इज ग्रेटर, क्रेडिट कि डेबिट हो सकता है, वाई वाई वाई, liability, liability will always have credit balance, credit side greater than debit side, so ये 5 5 5 क्या लिखना है, टू व्हाट, बैलेंस CD के BD, हाँ CD will become by balance BD, क्या इंडिकेट करता है ये, लोन टेकन टिल नाउ इज वर्थ 5000, अब तक लोन कितने का लिया हुआ है, 5000। लॉस ऑन सेल कौन सा सेट बड़ा होगा, लॉस ऑन सेल ऑब्वियसली डेबिट, डेबिट ही बड़ा होगा, 1500 1500 1500, क्यों डेबिट बड़ा होगा, वाई बिकॉज इट इज बाय बैलेंस CD 31,110 will become what, to balance BD। क्या इंडिकेट करता है ये, इस महीने क्या हो गया आपका लॉस, कितने का लॉस हो गया, 1500, नॉट इट। एडवर्टाइजमेंट में भी विच साइड विल बी ग्रेटर, वाई, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट ही बड़ा होगा, 1000 1000, difference is also 1000 by balance
CD के BD तो CD on 31,110 will become to balance BD on 1,210,000. Indicating your advertisement expenses paid till now are 1,000. Till now you have paid 1,000 रुपए का advertisement. The last account, who is that? संजय सिंघानिया. क्या है ये? क्रेडिटर है कि डेटर है? डेटर है ना? अरे डेटर है पक्का? क्यों क्रेडिटर है? क्रेडिट साइड इज ग्रेटर. दैट मीन्स इज योर लाइबिलिटी और एसेट. और ये कितना पैसा देना बाकी है इसको? 1500. ये क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी के बीडी. CD closing 31,110 will become what? By balance BD. एकदम correct. एकदम correct. This is on 1. This is on 1 to 10. समझाय છે કાઈ? Opening balance, posting and closing balance. All of you got this? Ledger has got how many parts? Opening balance, posting and closing balance. Always assets will have debit balance. Liabilities, expense, incomes. Assets में कौन सा सेट बड़ा होगा? Debit. Liabilities में assets में कभी क्रेडिट बड़ा हो सकता है डेबिट से? Not possible. है ही नहीं तो दोगे कैसे? Liability में कभी डेबिट बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है. समझो आपने 50,000 का लोन लिया क्रेडिट, तो क्या 60,000 चुका सकते हो? 50 ही चुकाओगे मैक्सिमम. सो लायबिलिटी विच साइड विल बी ग्रेटर? क्रेडिट. एसेट डेबिट. एक्सपेंस का कौन सा साइड बड़ा होगा? डेबिट. इनकम का क्रेडिट साइड. ऑलवेज. इज दिस क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? लास्ट थिंग, डेबिट साइड इज ग्रेटर. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस? डेबिट इज ग्रेटर, इट्स कॉल्ड डेबिट बैलेंस. क्रेडिट इज ग्रेटर, इट्स कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस. अभी घर पे क्या करना है आपको? ड्रॉ करना है. सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ड्रॉ करना है. कितना अकाउंट बनाओगे बताऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 अकाउंट. 9 accounts. 333. I think it is 9. You just verify. फोर्थ सम पे नहीं, इसके बाद इतने सारे नहीं है अभी. आप इसके बाद 3 4 ही है. ये प्रैक्टिस वाला सम है. फोर्थ सम देख लेना नंबर. मेरे को तो 9 मिले हैं, आपको एक आध एक्स्ट्रा मिले तो ड्रॉ कर लेना. 333 ऑन ईच साइड. पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके आना, नाम लिख के. ठीक है? वी मीट ऑन Saturday and Sunday. There is an auspicious occasion. Okay, do not forget. Chalo, all the best. Tata, bye bye. You take. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. All the best NM people for your college. Bye, sir. Enjoy the first day.